बच्चों, झूले, सलाम, नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। हमने बहुत हार्डवर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। So, hello kids, we are today meeting again for composition number part 2, composition part 2, जिसमें हम देखेंगे कि composition पहले हमने किया था with the help of picture। हमने 3 compositions किए थे लास्ट क्लास में। अभी हम composition करेंगे with the help of words। Let's learn how to write composition using words। but यहाँ पे हमने picture दिया है। We have given a cute little picture जिसमें एक mama tiger है और एक baby tiger है। So let's just write the words, फिर उसके बाद हम इसका composition बनाएंगे, and we'll see that if we have time we can write 3 compositions। ठीक है? हम लोग 3 compositions लिखेंगे with the help of words। तो हम composition कैसे बनाए? With the help of words। पहले हमने बनाया था composition with the help of pictures। Okay? So the words that I am writing here, तो उन words से हम लोग composition बना सकते हैं। Mama tiger, baby tiger, forest, sunny day, pond, alone, cry, help, roar, found, happy। So these are our words जिसको हमको देखते हुए composition with the help of words करना है। Okay? Mama tiger, baby tiger, forest, sunny day, pond, alone, cry, help, roar, found, happy। ठीक है? So let's just quickly move on to writing the composition। Now let's come to page number 83। In a forest there was a mama tiger and a baby tiger। On a sunny day, baby tiger ran away from mama tiger। When he went far, he realized that he is alone and had come far from his mother। So he started crying for help। When mama tiger saw that baby tiger was not around, she started searching for baby tiger। Mama tiger gave a loud roar, and then later mama tiger found the baby tiger। They both were happy to find each other। Okay? So this is how we write the composition using the words। Okay? So let's read this composition once again। In a forest there was a mama tiger and a baby tiger। So we have covered the first 3 words। Okay? Mama tiger, baby tiger and forest। On a sunny day, baby tiger ran away from mama tiger। So we have covered sunny day। When he went far, he realized that he is alone and had come far from his mother। Alone we have covered, and so alone only we have covered। So he
she started searching for the baby tiger. Mama tiger gave a loud roar, and then later Mama tiger found the baby tiger. They both were happy to find each other. So this is one composition. Let's move on and write the other composition. It's not in the book, but I will give some words and then we can write the composition. Okay? Lakshman dream family mother father sister dog vacation school fun enjoy beach water so these are some words Lakshman dream family mother father sister dog vacation school fun enjoy beach water. So let's make a composition with the help of these words. Okay. So Lakshman dream family mother father sister dog vacation school fun enjoy beach and water are the words. So इसमें हम composition बनाना शुरू करते हैं. Lakshman is a little boy who goes to school. Lakshman once had a dream at night that he is on a vacation with his family. Okay, Lakshman is a little boy who goes to school. One day at night, Lakshman had a dream that he is on a vacation with his family. In the dream, Lakshman was having fun with his mother, father, sister, and mother, father, and sister. In the dream, Lakshman was at the beach, and Lakshman was playing with his dog in the water, and they both were having a lot of fun. Now we made a composition with the help of the words. Was that difficult? No. So you need to use your imagination. आपको अपनी imagination use करनी है composition बनाने के लिए. अभी हमने words के साथ composition कितनी easily बना लिया. तो वैसे ही हमें composition बनाना है words के साथ. तो इसमें इस पार्ट में जो कैट है वो आपको composition के लिए कुछ words दे सकती हैं और सारे students सेम वर्ड्स यूज करके अपनी इमेजिनेशन यूज करके कॉम्पोजिशंस लिख सकते हैं और यू कैन यूज दीज वर्ड्स आल्सो. ठीक है, तो अभी हमने क्या कॉम्पोजिशन बनाया था हम दोबारा से रिपीट करते हैं. ठीक है, हो सकता है कुछ चेंजेस हो क्योंकि हमने कहीं राइट नहीं किया, स्पॉन्टेनियसली कॉम्पोजिशन बनाया है तो हम दोबारा से बनाते हैं. ठीक है, Lakshman is a little boy who goes to school. One day at night, Lakshman saw a dream that he is on a vacation with his family. Lakshman was having fun with his mother, father and sister at the beach. Lakshman was playing with his dog with water and was enjoying himself. ये
कॉम्पोजिशन बन गया। ओके, तो अभी हमने देखा कि हम कॉम्पोजिशन कैसे बना सकते हैं। पहले हमने देखा पिक्चर के साथ कैसे बना सकते हैं, एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। तो अभी हम वर्ड्स के साथ बना रहे हैं, वर्ड्स के साथ कॉम्पोजिशन कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा। तो अब तो हम कॉम्पोजिशन बनाने में एकदम परफेक्ट हो जाने चाहिए, राइट। तो लेट्स सी अभी कॉम्पोजिशन हम एक और बनाएंगे with the help of the words. Let's write some words, let's think of some words, फिर हम composition बनाएंगे, ठीक है। Okay, let's look at something. Okay, this one. Festival, Halloween, knock, door, kids, trick or treat, witches, ghosts, clowns. Okay, so these are some words: Halloween, festival, knock, door, kids, trick or treat, witches and ghosts. So I have a composition already here with me. I will tell you the composition. On Halloween, okay, firstly, Halloween is a festival that is celebrated in the month of October. On Halloween, people carve pumpkins with knives and make funny faces on them. They are called jack-o'-lanterns. Children wear costumes so that they look like witches, ghosts and clowns. They go to many houses and knock on the door. The kids go to many houses and knock on the door, and they say trick or treat. It means that if people don't give them a treat, the children will play some kind of trick on them. Okay? Trick or treat, which means that अगर बच्चों को ट्रीट नहीं देंगे, जिनके भी घर जाके वो नॉक करेंगे, तो उन्हें वो ट्रिक करेंगे, ठीक है। Usually people give candies to them. The holiday involves all members of the family and also many neighbors. So Halloween एक फेस्टिवल है जो कि यूएस में बनाया जाता है, अमेरिका में बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि पंपकिन्स को कार्व करके उनकी आईज और लिप्स वगैरह माउथ बनाया जाता है और फनी तरीके से बनाया जाता है। एंड उसमें क्या करते हैं बच्चे, दे गो टू हाउसेस, वो घर अलग अलग घरों में जाके डोर्स पे नॉक करते हैं और क्या बोलते हैं, ट्रिक एंड ट्रीट, ट्रिक और ट्रीट, ट्रिक और ट्रीट। ट्रिक और ट्रीट का क्या मतलब होता है, आपको चॉइस हम दे रहे हैं कि आप हमें ट्रीट दो या ट्रिक करेंगे हम। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो बच्चों को कैंडीज देते हैं ट्रीट देने के लिए के सिग्निफिकेंस से, ताकि वो उन्हें ट्रिक ना करें। और बच्चे क्या बनते हैं, विचेस बनते हैं, घोस्ट बनते हैं, क्लाउन्स बनते हैं, कुछ भी वो बनते हैं हैलोवीन के फेस्टिवल में।
तो हमने ये कॉम्पोजिशन नंबर 3 देखा जो कि हमने वर्ड्स को यूज करके बनाया। ओके, एंड आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आया होगा कि कॉम्पोजिशन अब कैसे बनाया जाता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कॉम्पोजिशन वर्ड से कैसे बनता है, कॉम्पोजिशन पिक्चर से कैसे बनता है। आपको बेसिकली क्या करना होता है, जैसे अगर आपने पिक्चर भी देखा तो आप पिक्चर से भी वर्ड्स जो भी आपने देखा, जैसे कि आपको मैंने बुक में पार्ट 1 कॉम्पोजिशन पार्ट 1 में आपने पिक्चर देखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि एक गार्डन की पिक्चर है। ठीक है, उस गार्डन में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और 2 बच्चों की ग्रैंडमदर है जिसके साथ वो बेंच पे बैठे हैं। तो कॉम्पोजिशन लिखने से पहले एक रफ साइड पे आप ये लिख लो कि आपने उस पिक्चर में क्या क्या देखा, उन बच्चों को नाम दे दो। ठीक है, अब जैसे हमने बच्चों को सबको नाम दिया, जो खेल रहे थे, राहुल रीता जो कि पार्क में खेल रहे थे, फिर ऋषि जो डॉग के साथ खेल रहा था, और रश्मि जो स्कूटर चला रही थी पेज नंबर 81 में, और सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। 2 बच्चे अपने अपने ग्रैंडमदर के साथ बैठ के बेंच में बुक पढ़ रहे थे, और 2 बच्चे पेड़ पे खेल रहे थे। तो उन बच्चों के हम नाम दे सकते हैं। हम कॉम्पोजिशन जब लिखते हैं वी कैन राइट सम वर्ड्स, हम लोग लिख लेते, जैसे हमने लिखा सनी डे है तो हमने सनी डे लिख दिया, ग्रैंडमा लिख दिया, डॉग लिख दिया, स्कूटर लिख दिया, पार्क लिख दिया, बेंच लिख दिया। तो ये कुछ वर्ड्स हमने लिख दिए जो कि हमें याद रहे कि हमें कॉम्पोजिशन में ये सारे वर्ड्स के साथ कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐड करने हैं। तो ये एक ट्रिक होती है कॉम्पोजिशन लिखने की। ठीक है, और जब आपको वर्ड्स के साथ दिया जाता है तो आपको वर्ड्स तो पहले से दिया जाता है, लेकिन आपको अगर हमने जैसे मैंने स्पॉन्टेनियसली एक कॉम्पोजिशन बना लिया जिसमें लक्ष्मण अपनी फैमिली के साथ बीच पे वेकेशन पे ड्रीम में गया। ठीक है, अब मैंने आपको वर्ड्स दे दिए, तो आप अपने एंड से भी और वर्ड्स ऐड करके ऐसी साइड में रफ साइड पे लिख सकते हो कि आपको इस स्टोरी से रिलेटेड और क्या क्या वर्ड्स ऐड करने हैं। तो आपको उससे क्या होगा, जब आप कॉम्पोजिशन लिख रहे होगे तो आपको वो वर्ड्स के थ्रू याद रहेगा कि हमें सेंटेंसेस कहाँ लिखने हैं। ठीक है, और आप मिस्टेक कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप मिस्टेक करोगे तो ही सीखोगे। एक बार ठीक नहीं करोगे, दूसरी बार ठीक नहीं करोगे, तीसरी बार नहीं करोगे, तो 4th या 5th टाइम आप ठीक से लिखोगे। तो मिस्टेक से कभी मत डरो कि आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, we are kids and we are bound to make mistakes, so that's completely alright, but आपको बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो आपसे मिस्टेक होती रहेगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से कि अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप कैट से पूछो, या फिर आप मेरी वीडियो पॉज करके कैट से रिक्वेस्ट करके बोलो कि दोबारा से प्ले करके समझना है। ठीक है, तो आप उसी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कॉम्पोजिशन किसी भी टॉपिक के बारे में बात करें, चाहे कॉम्पोजिशन हो, चाहे सिलेबल्स हो, चाहे वाउल्स हो, चाहे नाउन्स हो, कुछ भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने कॉम्पोजिशन देखा, और तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे पीपल एंड देयर वर्क, व्हिच इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर इज very vast and very nice to understand, and बहुत easy है ग्रामर। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, अगर आप ठीक से समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपका अगर ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो आप इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में इंग्लिश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है अपार्ट फ्रॉम आवर मदर टंग व्हिच इज हिंदी। तो हिंदी के अलावा आपको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में पीपल एंड देयर वर्क करेंगे, ऑक्यूपेशन, व्हाट इज देयर ऑक्यूपेशन। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉम्पोजिशन बोरिंग नहीं लगा होगा। आप ऐसे ही वर्ड्स के साथ या पिक्चर्स के साथ जल्दी कॉम्पोजिशन लिखिए और जल्दी जल्दी फोटो खींचिए कॉम्पोजिशन लिख के। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड यू ऑल हैव अ ग्रेट डे, बाय।